Hi everyone, this is Unnati, and this is our second video of the revision series. And the topic we are doing today is chapter 2 of Civics class 9th, Constitutional Design. Okay, so the introduction of this chapter starts with the struggle of South Africa. ठीक है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में कैसे आया, हम पहले उसको समझेंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे और फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे. अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, देयर वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. Now, what is apartheid? Apartheid was the name of a system of racial discrimination. Racial discrimination is done on the basis of color, unique to South Africa. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. It means blacks were treated differently and whites were treated very differently. Okay. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. ये जो अलग अलग करने का तरीका है, लोगों को अलग करके डिवाइड करके उनको रूल करने का जो तरीका है, इट इज़ नोन एज सेग्रीगेशन. ओके, सो इस चीज़ से लड़ने के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि सारे ब्लैक्स और कुछ जो इनोसेंट वाइट्स थे उनके साथ मिलके अपार्थीड के खिलाफ लड़ रही थी. वहाँ हाल इतना बुरा था, द अपार्थीड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज. जहाँ वाइट रहते हैं वहाँ ब्लैक्स नहीं रह सकते थे. दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट लेके आप वाइट वाले एरियाज में जा सकते हो. Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges and libraries, cinemas, halls, theaters, beaches and swimming pools, everything was different, separate for the blacks and the whites. Even they couldn't even go to the church where white used to go. Okay, and this whole process was known as segregation. तो ये जो African National Congress है, this was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. Okay, so they were fighting for the end of apartheid in the country. अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स बढ़ते जा रहे थे अपार्थीड के खिलाफ. द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन. अब वो उनको और बांध के नहीं रख सकते हैं. द वाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज. उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया और जो बैन था पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, मीडिया पे, उसको लिफ्ट किया. आफ्टर 28 years of imprisonment, the protest against apartheid had increased. The government realized that they could no longer keep blacks under their repression and they lifted up the bans. The new national flag of the South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. After emergence of new South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. Now, this will be very unacceptable and unexpected to most of us, but I would like to read what Nelson Mandela used to think about it. Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the other. जिन्होंने हम पे अत्याचार किया उन्होंने इस पीसफुल ट्रांजिशन को भी एक्सेप्ट किया. वाई? बिकॉज देर इज़ अ कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन वन अनदर. ओके, माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस. Everyone should believe in the goodness of the individual, that they cherish, that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. Why he said so? कि जो गुडनेस है, जो चेरिश करना है फेथ को, ह्यूमन बींग्स के अंदर फेथ रखना, ये हमारी डेमोक्रेसी का कॉर्नरस्टोन है. ओके, अवर डेमोक्रेसी विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो टू सी द गुडनेस एंड फेथ, बिलीफ इन द अदर पर्सन ऑल्सो. वाई वी थिंक कि जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर उनकी जो डेमोक्रेसी है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन, दैट दे फॉरगेव ईच अदर एंड दे मूव्ड फॉरवर्ड टू मेक अ वेरी बेटर प्लेस फॉर देमसेल्व्स टू लिव इन. Okay, and later on, the party that ruled through oppression and brutal killings of the black and the party that led the freedom struggle, they both sat together to draw up a common constitution. Can you see the beauty in that? कि जिन्होंने ऑपरेशन किया वो भी और जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को फॉट किया वो भी, वो दोनों साथ में बैठ के अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, जहाँ पे ये दोनों लोग साथ में आराम से रह सकें. ओके, that their rights and properties will not be taken and they can live peacefully in a black majority country. We will cover this in the next slide.
both the parties decided that nobody should be excluded, nobody should be treated as a demon, किसी को differently treat नहीं करना है. They agreed that everybody should become part of the solution. हमें अपनी country के लिए एक solution ढूंढ रहे हैं और उस solution का सबको part बनना है. Everyone should be a part of it. Even the whites and the blacks, even though they were in minority now, but still they included them. Okay, whatever they might have done or represented in the past, it should not decide the future of the country. तो ये जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हर जगह के डेमोक्रेट्स को इंस्पायर करता है कि जो कंट्री जिसकी बात भी नहीं हो रही थी 1994 तक एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. और ये हुआ कैसे? वट मेड दिस चेंज पॉसिबल वॉज द डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका to work together to transform bitter experiences into the binding glue of Rainbow Nation. Now they are known as Rainbow Nation. अब क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही चाहिए? Why do we need a constitution? कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है? वो लोग साथ में बैठ के बातचीत करके भी कर सकते थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों? उन्होंने उस चीज़ को लिखा. वाई? बिकॉज जनरेट्स डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन. जब आप किसी को लिख कर देते हो, एग्री करते हो उन चीज़ों पे, ऑन द एग्रीमेंट. हम एग्रीमेंट क्यों बनवाते हैं? बिकॉज उससे हमें गारंटी मिलती है, हमारा ट्रस्ट बिल्डअप होता है. दैट्स वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू जनरेट द डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, कि हाँ हम दोनों मिलके कोऑर्डिनेट करेंगे. टेल्स हु हैज़ द पावर टू टेक डिसीजंस. जब वहाँ पे ब्लैक मेजॉरिटी में थे तो दे कुड हैव डन एनी थिंग दे वॉन्टेड. वाइट तो वैसे भी अब माइनॉरिटी में है. दे हैव डन सो मच एट्रोसिटीज ऑन द ब्लैक पीपल इन द पास्ट. दे कुड हैव डन द सेम टू देम ऑल्सो, बट द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स who takes the final decision and who has the more power. Constitution also limits the powers of the government and tell us our rights. Constitution गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है. अगर गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर होगी तो वो सिटीजन्स को अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उनको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, जैसे वाइट पीपल दे वर डूइंग इन द साउथ अफ्रीका. बट वेन वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स इट हैज़. सो इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस आवर राइट्स ऑल्सो. हमें जब तक हमारे राइट्स ही नहीं पता, वेन यू डोंट नो वट योर राइट्स आर, देन एनी बडी कैन कम एंड एक्सप्लॉइट यू. द कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस अवर राइट्स ऑल्सो. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज़ को सेफगार्ड करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस डाले जाते हैं, उनके लिए लॉज बनाए जाते हैं जिनसे माइनॉरिटी को अनवांटेड एक्सप्लॉइटेशन से सेव किया जा सकता है. ऑल्सो क्लैरिफाइज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स. आपकी कंट्री में भी, इंडिया में भी फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. हमें फंडामेंटल राइट्स तो याद रहते ही हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम कई बार भूल जाते हैं. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी याद दिलाता है कि इवन दो यू हैव द राइट्स, यू हैव ऑल द फंडामेंटल राइट्स, बट यू हैव सम ड्यूटीज़ एज वेल. तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पर डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. अब आपके बीच में से कोई भी खड़ा होकर ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता. यू हैव टू अबाइड बाय दैट. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट determines the relationship among people living in a territory called citizens, and also the relationship between the people and the government. It also tells you what's the relation between the government and the people also. That's why constitution is very important to be there. It is a set of rules and regulations by which a country is governed. अब अगर बात करें मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ देखा हुआ है पास्ट में. वी वर डीलिंग विद द पार्टीशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, फेमाइंस एंड सो मच मोर. तो उसके बीच में और उससे पहले, इवन दो एज फार एज बैक इन 1928, मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया ओके, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है 1928 ओनली. हमें इंडिपेंडेंस मिली है 1947 में. कॉन्स्टिट्यूशन came into effect in 1950, but can you see, उन्होंने 22 years ago ही एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया था. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India should look like. 1931 में उन्होंने बात की कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया दिखना कैसा चाहिए. ठीक है, बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हमारे यहाँ पे हर एडल्ट को वोट करने का राइट होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, and to protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India. There are some words in this they are missing. Okay, तो दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ सिमिलर थी कि एडल्ट को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूडेड होना ही होना चाहिए. ये वो बेसिक रूल्स थे जिनको कोई नहीं छेड़ना चाहता था. दे ऑल एग्रीड अपॉन. नाउ इंडियंस वर नॉट हैविंग मच नॉलेज अबाउट हाउ टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन,
But the experience gained by Indians in the working of the legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institutions and working in them. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details. हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था जिसमें से मोस्टली चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं. वी हैव अडॉप्टेड मेनी थिंग्स फ्रॉम द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. Okay. Years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries as well. हमने बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और वहाँ से हमने चीज़ें ली. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ सो बल्कि, तो उसका सिंबल जो है वो एलिफेंट है. वी हैव द बल्किएस्ट एंड द मोस्ट वॉल्यूमिनस कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution. हमारे लीडर्स को फ्रेंच रेवोल्यूशन ने काफ़ी इंस्पायर किया. द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल्स ऑफ राइट इन द यूएस. द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस to think of shaping a system based on social and economic equality. तो हमने सारी जगह को कंपेयर किया, सबके कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया और हमने वहाँ से वो चीज़ें ली जो हमें लगा कि हमारी कंट्री में दे विल वर्क वेरी nicely, very beautifully, and they will help in our country. So all these factors contributed to the making of our constitution. अब जो फाइनल ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था वॉज डन बाय असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको इलेक्ट किया गया था, कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है. दीज हुज इलेक्शंस वर हेल्ड इन जुलाई 1946. इनके इलेक्शंस हुए थे जुलाई 1946 में. इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर में 1946 और इसमें 299 मेंबर्स थे जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन. कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को डिसाइड किया गया और सबने उन पे एग्री किया. देन अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन के लिए एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाया गया जिसपे सेवरल राउंड्स हुए डिस्कशन के और मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स किए गए, जिसके बाद एक फाइनलाइज्ड वर्जन निकाल के हमें मिला. कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल से ज़्यादा का टाइम लगा और हमने इसको अडॉप्ट किया. वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. इसको हमने अडॉप्ट किया था, ये केम इनटू इफेक्ट नहीं है. उसको माना कब से जाने लगा केम इनटू इफेक्ट? 26 जनवरी 1950, जिसको हम आज रिपब्लिक डे के ओकेजन में सेलिब्रेट करते हैं. ओके. अच्छा, इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं कि ये कॉपी एंड पेस्टेड आर्ग्यूमेंट वो है, कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट इज़ नॉट हैविंग एनीथिंग ऑफ इट्स ओन. कोई हमने फ्रांस से लिया है, कुछ हमने अमेरिका से लिया है, कुछ हमने USSR से लिया है. बट वी ऑलरेडी हैव नोटेड वन रीजन अबव. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन. जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शंस हो रहे थे तो वहाँ पे अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से लोग आए थे और उनको इलेक्ट किया गया था ताकि हर एरिया के लोगों की बात सुनी जा सके और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जा सके, किसी को छोड़ा ना जाए. हर किसी की बात रखी गई, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बहुत सारा डिस्कशन हुआ. उसके बाद जाके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना है बिकॉज हमारे इंडिया में इतनी एथनिसिटी है, इतना डाइवर्सिफिकेशन है कि उसके लिए हम छोटा सा या फिर सिंपल कुछ चीज़ों को देख के हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना डिराइव नहीं कर सकते थे. मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज ऑफ बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज. बट इंडिया के अंदर आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स तो होते रहते हैं बट कभी ऐसी डिमांड नहीं आई कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दो. एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग. योर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड ईयर्स अगो एंड इट इज स्टिल वर्किंग रियली फाइन एंड वी हैव डन अमेंडमेंट्स to it according to our needs. As the time is changing, we make amendments in the constitution, but it still fits many of the aspects for the people living in the country. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एक प्रिएम्बल से, एंड इट इज़ नोन एज द गाइडलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेस्ट वैल्यूज विच is called the preamble of the constitution. It mainly focuses on justice, social, economic and political rights. Okay, आपके पास सोशल राइट्स हों, जस्टिस हो, इकोनॉमिक राइट हो, पॉलिटिकल राइट्स हो, इनका मेक श्योर करती है आपका कॉन्स्टिट्यूशन. लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन हो, बिलीफ हो, फेथ हो, वर्शिप हो, आपको ये फ्रीडम दी जाए इन सब चीज़ों की. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आपको स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दोनों में इक्वालिटी मिले. फेटर्निटी इश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द nation. These are the philosophical terms that are used in the preamble. Basically done with this topic.
that is philosophy of the constitution. There is one another topic after this one, that is preamble, and I would need to make a separate video on that because it has 9 key terms that are asked in the exams very frequently. Okay, so we will cover it in the next video that will be uploaded tomorrow morning. These are the important questions that have been coming to the exams very religiously. These are the favorite topics of CBSE also. And if you have any queries, you can also comment them into the comment section. Also, the topic of preamble will be fully covered in the next video that will be uploaded tomorrow morning. So, thank you for watching.